नमस्कार दर्शकों, आज CPHI और पीमेक इंडिया 2022 एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भव्य कार्यक्रम था और इसमें लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनका आगमन हुआ और 1500 से ज़्यादा प्रदर्शक तथा 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने वाला व्यापार मेला 9वें वार्षिक भारत फार्मा पुरस्कार CEO राउंड टेबल और वुमन इन फार्मा राउंड टेबल जैसे शक्तिशाली सहायक कार्यक्रमों का एक साथ आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में, क्या क्या खासियत रही, क्या क्या खूबी रही, आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। India is seen as a pharmacy of the world. We produce some of the most low-cost and generic medicines and export it to the world. And what you are going to see here across is some of the leading pharmaceutical companies, not only from India but a lot of international companies also coming here. And over this next 3 days, there's a lot of sourcing that is going to happen in terms of business, and we also have a lot of events lined up over here. Over the next 3 days, we have a closed-door CEO roundtable that is going to happen. Some of the leading pharma CEOs are going to be here. Okay, sir. Thank you. So we have to my right Adam Anderson, who is head of pharma portfolio for Inform Markets in India. Entire CPHI portfolio falls under him, the global events that we do. To my next is Shri Viramani, who is Vice President of Pharmexcel and incoming President for Pharmexcel. Next to him is Chrissy, who is Senior Vice President Asia for Inform Markets in Asia. So after I speak, I'll pass on the mic to each one of them, and then we'll open the floor for questions. So as I was talking about this event, and this has become a leading sourcing event over the 3 days. People not only come here for sourcing, but also a lot of networking. Thank you. Pharmacy Week celebration is now going on. Where the theme is India Pharmacy of the World. So that is every third tablet consumed in the world is produced from India. It's a matter of pride, and also it's the third largest producer of pharmaceuticals. Well, from that discount they may be giving. So there's not so much the discount. See, in spite of giving the lowest price in the world in India, still we are getting all this information as if the drug prices in India is very high. If you go to India, including Bangladesh or including Pakistan, the prices of pharmaceutical much higher than India. टैक्स की क्या सिचुएशन है सर? टैक्सेस Taxes. Yeah, taxes. If government is able to reduce the tax, it will be beneficial to the public. As far as India is concerned, they are having a national pharmaceutical pricing authority where the prices are controlled. आपको लगता है टैक्स कम हो जाए तो और जनता को, आम जनता को और फायदा मिल पाएगा? मिल Sir, how many companies are participating in CPHI India, and where do you see CPHI India vis-a-vis your other counterparts which you are in Europe and China and other? Growth will be there. So India will have its own share. Global market क्या है total USD? Global market is in trillion, something like 1.2 1.3 trillion US dollars. सर, एंटीबायोटिक दवाइयों को लेकर जिस तरीके से सरकार बड़ी सचेत है, डॉक्टर भी बड़ा उस पर रिसर्च कर रहे हैं और लगातार जो एक डॉक्टर की जो धुरी है वो एंटीबायोटिक दवाइयों को ज़्यादा इस्तेमाल करने का मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी दी जाती है। तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट क्या एम्बोक्सिलिन या कुछ ऐसा निकाल रहे हैं जिससे उसको मरीज पर ज़्यादा असर ना पड़े और एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट्स ना हो, वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम लगता है। You are talking उस about पर antibiotic- फार्मा कंपनी क्या करती है?
उसमें फार्मा कंपनी का क्या रोल है? सब्स्टिट्यूट About side effects. साइड इफेक्ट Side effects. One thing I tell you, India was some years back, many years back, India had a lot of infectious diseases. But they say communicable disease and non-communicable disease. India had a lot of communicable disease some last decade ago. But now it is a non-communicable disease. It's more like ग्रोइंग द फार्मा इंडस्ट्री। तो एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शो का, जहाँ पे बिजनेस होता है, ट्रांजैक्शंस होती है, सोर्सिंग होता है, मशीनरी बेची जाती है। सो वो उस हिसाब से एक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पुश रहा है ओवर द ईयर्स। ये साल एज ए सेड 1500 से ज़्यादा कंपनीज 1 लाख स्क्वायर मीटर्स के एरिया में एग्जिबिट कर रही है। सो ये एक 3 साल से इतना स्केल का इवेंट हुआ नहीं था, 2019 में हुआ था और अभी 3 साल के बाद हो रहा है। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि एक फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा पुश मिलेगा, सोर्सिंग होगी, मशीन मिलेगा, तो उससे आपके कॉस्ट इवेंचुअली आपको ओवर लॉन्ग रन एक रिडक्शन आएगा। जैसे आपने कहा कि 15 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत किए थे, Yeah. नेक्स्ट 10 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? तो डेफिनेटली आई थिंक आई वुड वांट टू सी इंडिया एज द बिगेस्ट शो फॉर फार्मा इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे सारी वर्ल्ड की सोर्सिंग यहाँ पे हो जाए। जैसे अभी बड़े शोज़ है, यूरोप में है, चाइना में, अलग जगह पे। माय विजन इज़ इन नेक्स्ट 10 साल में आई थिंक हम इतना बड़ा शो करें कि फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में ही आए सोर्सिंग के लिए, इंडिया बिकम्स अ हब फॉर फार्मा। सर ये तो सपोज है कि फार्मा की दवाइयों में 100% 400% तक की मार्जिन रहता है। गवर्नमेंट उस पर एक रेट कोट करना चाहती है कि पर्टिकुलर रेट पे इसको दवाइयाँ मिले, जिससे उसको या सही आदमी तक पहुंच पाए। लेकिन रिसर्च एंड R&D में दवाइयों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो क्या फार्मा उस पर एक्सपोज कर पाएगा? सी आई थिंक आपको दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकता। आपको सस्ते में दवाई चाहिए और आपको रिसर्च और इनोवेशन करके नई दवाई। सर फर्स्ट ऑफ आपका इंट्रोडक्शन। I am S.V. Veeramani. I am the Vice Chairman of Pharmaceutical Export Promotion Council of India. I am also the Chairman and Managing Director of Forts India Laboratories Private Limited. इंडिया में जो हाई रेट्स है एलोपैथिक मेडिसिन का, उसके बारे में फार्मा क्या कर रहा है? Pharmaxil or Kaun? You are talking about Indian Pharma or Indian Pharmaxil? इंडियन फार्मा। Indian Pharma means Indian pharmaceutical industry. What the price is not very high actually. Price is one of the lowest in the world. Even compared to Bangladesh or Pakistan and all, price in pharmaceuticals, India is इतना बड़ा नहीं है। चाइना के मुकाबले हम लोग हम कंपेयर कहाँ कर पाते हैं अपने? See, China making a lot of APIs, India active pharmaceutical ingredients, whereas India is making a lot of formulations. In formulation, we are better than China, but in active pharmaceutical ingredients, China is much better than India. टैक्सेस अगर कम हो जाते हैं, आम जन को इसका फ़ायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, because that much saving they will get. गवर्नमेंट की जो योजना है जन औषधि है, उसके आपके किस नज़र से देखते हैं? आपका क्या Jan Aushadhi में generic drugs they are giving, and some public are also benefited. So as per choice of the public, उसको whether you want generic or branded generic, they can buy whatever they want. तो आम जनता के लिए क्या ज़्यादा फ़ायदे का सौदा क्या रहेगा? See, आम जनता के लिए हमको we are giving a good price, and we are ready to give reduced price also if possible. Suppose margin हमारा margin reduce करके हम price lower price देते हैं अभी। ओके, थैंक यू सर। Thank you, thank you. रखन दीजिए योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फो मार्केट्स इन इंडिया। सर। हम लोग अपने आप को चाइना के मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग? सो चाइना में अगर हम लोग आप फिनिश ड्रग्स में देखो, फॉर्मुलेशन में देखो, हम लोग चाइना से ऑलरेडी आगे है, या कॉम्प्लेक्स एपीआईज में देखो हम लोग आगे, बट बेसिक जो एपीआईज है, जेनरिक एपीआईज है, उसमें हम लोग बहुत पीछे है, बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नियरली 30% लोअर है इंडिया से। आज वहाँ पे हम लोग उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे। अगर वो कम्पीट करेंगे, बिकॉज उनको बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती है, पावर सप्लाई ये मिलता है। अगर आज हमारे इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली आई थिंक वी विल बी एबल टू कम्पीट इवन इन बेसिक एपीआईज विद चाइना। तो इससे देश को भी काफ़ी लाभ होगा और देश को रेवेन्यू काफ़ी मिलेगा और हम लोग बाहर भी काफ़ी सारा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। करेक्ट। तो अब जो टैक्सेस के बारे में मैंने एक सवाल किया था, आगे यदि टैक्सेस भी कम हो जाए तो इसका भी कोई फ़र्क पड़ेगा? तो डेफिनेटली बिकॉज टैक्स अगर कम हो जाए तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और उससे देन यू आर एबल टू एक्सपोर्ट मोर, इवन गिव मोर चीपर मेडिसिन आउट इन द मार्केट। सो डेफिनेटली उसका बेनिफिट होगा और एटलीस्ट लुक एट द लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड एटलीस्ट यू स्टार्ट विद दैट, आई थिंक इट विल हेल्प फॉर द
manufacturers. जेनेरिक दवाइयों के बारे में एक भ्रांति है कि जेनेरिक दवाइयाँ उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, तो Not इसके at all. बारे में बताएं। Not at all. I think generic are as equal and as powerful as branded drugs. Only thing is branded is because of the manufacturing, the innovator companies, and they have the price which is high. और उसको एक टाइम तक रहता है, 5-6 साल वो ही कर सकते हैं. उसका जो टाइम लैप्स होता है, ऑफ पेटेंट होते हैं, उसके बाद जेनरिक्स आ जाती है मार्केट में, विच इज़ एट अ मच लोअर कॉस्ट दैन द ब्रांडेड ड्रग्स, बट इट्स इक्वली एंड सेम इन क्वालिटी. पैंडेमिक में कहा गया कि बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में गई, तो भारत इस दृष्टि में कहाँ रहा बहुत सारे कंट्रीज में? सो फार्मा इंडस्ट्री इज़ अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, बिकॉज आज देखा जाए कि आज आपके एक्सपेंसेस हो, आप बाकी हो रेस्टोरेंट में हो या घूमना फिरना हो, वो आप कट करो, लेकिन मेडिसिन तो आप आज कोई भी अपने लाइफ से रिलेटेड है तो डेफिनेटली लेता है. सो उसमें कोई रिसेशन नहीं हुआ. बट ऑफकोर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम व्हाट वी सॉ इज जो अदर दैन कोविड जो थे डिसीजेज, और उस पर बिकॉज डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, फोकस नहीं था, तो उसका जो मेडिसिन कंजम्पशन था कम हुआ, बट कोविड रिलेटेड वॉज हाई. बट नाउ अभी विथ things back to normal, I think. But now, abhi, with things back to normal, I think attention is now for all the different diseases and ailments. So it's really back to normal now. फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं अब हमारी इंडस्ट्री को? Definitely, I think pharma industry is our shining light. I think it's pharma in terms of exports. India is the 5th largest exporter of pharmaceuticals. So I'm sure it will grow from strength to strength. Of course, I think I would love to see in value terms also, not just volumes. So I think we will continue growing in volumes, but I think the real value add will happen when we actually start growing in value terms. Really, pricing भी high cost medicines भी हम लोग इंडिया से अगर एक्सपोर्ट कर सके तो, जो खुद इनोवेट किए हो, इंडिया में रिसर्च करके आए हो वैसे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो ये थी जो हमें जानकारी दे रही थी कि किस प्रकार से भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है वो फ़ायदे में हो सकती है यदि टैक्सेस कम हो, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानकारी दी.